Hi everyone, today we will take up the poem Abhisara, the Tryst, which is written by Rabindranath Tagore. Abhisara means meeting between lovers, meeting of beloved ones. Okay, so Abhisara means meeting of loved ones or meeting between lovers. I'll explain you line by line, and the lines which will be hard, I'll try to explain you in Hindi. So let's start. Upagupta. Now, Upagupta is a Buddhist monk who is disciple of Buddha, means who is a follower of Buddha, who worships Buddha, okay, lays asleep in the dust by the city wall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut, and the stars were all hidden by the murky sky of August, whose feet were those tinkling with anklets, touching his breast of a sudden. He woke up startled, and the light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes. It was Vasavdatta, the dancing girl, stared with jewels, clouded with a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. She lowered her lamp and saw the young face, austerely beautiful. Now let's take up this much portion first. Now I told you that Upagupta is a Buddhist monk, okay, and he is lying asleep, okay, on the roadside, okay. Let me just explain you in Hindi, which will be more easy for you. सो उपागुप्ता जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि फॉलोवर है बुद्धा का, ठीक है. नाउ अब वो सोए हुए, ओके, ही इज लाइंग ऑन द रोड साइड सिटी वॉल ऑफ मथुरा, मतलब जहां मथुरा स्टार्ट होता है, ओके, जहां मथुरा स्टार्ट होता है वहां रोड साइड पे वो लेटे हुए, ओके. लैम्प्स वर ऑल आउट, डोर्स वर ऑल शट एंड द स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ ऑगस्ट. मींस लैम्प्स वर ऑल आउट, डोर्स वर ऑल शट, ओके, स्टार्स वर ऑल हिडन. ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये रात का समय था, ठीक है. लैम्प्स वर ऑल आउट मतलब इट वाज ऑल डार्क, ठीक है. डोर्स वर ऑल शट मतलब सारे दरवाजे बंद थे, लोग सोने के लिए चले गए थे. ऑल पीपल वेंट फॉर स्लीपिंग, ओके. एंड स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ ऑगस्ट. मींस स्टार्स वर हिडन, ओके. व्हाई दे वर हिडन? बिकॉज it was the month of August, and August is the rainy season, okay. August is the rainy season, okay, rainy month, okay. So stars were hidden under the murky sky. Murky sky means black sky, okay. So stars were all hidden under the murky sky because it was rainy season, month of August. Whose feet were those tinkling with anklets. And now यहाँ पे ये बता रहे कि इतनी शांति थी कि उपागुप्ता को घुंघरू, okay, anklet, पायल, घुंघरू, whatever, okay, की भी आवाज आ रही थी. इतनी शांति थी वहां, ठीक है. It was all so quiet that Upagupta could hear the sound of anklets. Okay, now all of a sudden, okay, someone's feet touched Upagupta's breast. Okay, now what happened? कि किसी के पैर Upagupta के breast पे touch हुए. Okay, he woke up startled. Startled means चौंक जाना. All of a sudden वो उठे और उन्होंने देखा कि एक woman है जिन्होंने लैम्प पकड़ी हुई है, और जो लैम्प की रोशनी है वो Upagupta के फॉरगिविंग आइज पे पड़ रही है. Now what does forgiving eyes means? Okay, forgiving eyes मतलब कि Upagupta बहुत काम थे, उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, ठीक है. एज इफ वो अपनी आंखों से कहना चाह रहे थे कि इट्स ओके. उस वुमेन को कहना चाह रहे थे कि इट्स ओके, अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं गुस्सा नहीं हूं, एकदम आई एम ऑल काम, ओके. एज इफ ही सेइंग फ्रॉम हिज आईज, नॉट ही इज रियली सेइंग, मतलब वो सही में नहीं कह रहे, एज इफ वो कहना चाह रहे अपनी आंखों से कि इट्स ओके इफ यू डिस्टर्ब मी, आई हैव नो एंगर टुवर्ड्स यू, ओके. नाउ कौन थी वो वुमेन? वो थी वासव दत्ता, ठीक है, द डांसिंग गर्ल, ओके. जो गर्ल होती हैं, जो लड़कियां होती हैं जो डांस करती हैं, वो वासव दत्ता थी, ठीक है. स्टेयर्ड विद ज्वेल्स मतलब हर बॉडी वाज ऑल रैप्ड विद ज्वेलरी, ओके, एज मेंशन की एंकलेट्स पहने थे यहाँ पे, ठीक है. तो उनकी बॉडी पूरी ज्वेलरी से भरी हुई थी, ठीक है. हर बॉडी वाज ऑल रैप्ड विद ज्वेलरी, ओके. Clouded with a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. Okay, now clouded with a pale blue mantle means she was wearing, okay, she was wrapped with a pale blue mantle. Pale means dull blue mantle. Now mantle इधर रेफर कर रहा है कि एक क्लोथिंग पीस जो कि हमारी बॉडी को पूरा रैप करके रखता है. I'll put up a picture साइड में ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आए. ठीक है, drunk with the wine of a youth means drunk with the wine of a youth. यहाँ पे वो अपनी जवानी में धुन थी, ठीक है. आज हम लोग में कहते हैं कि जवानी में हम लोग के पर निकल आते हैं, ओके. वी एक्ट सुपीरियर, वी एक्ट मैच्योर, ओके. सो एंड वगैरह वगैरह. तो वासव दत्ता का भी यही हाल था और वो अपनी जवानी में धुन थी. एंड शी हैड प्राइड ऑन हर ब्यूटी, उसको घमंड था अपनी खूबसूरती पे, ठीक है. शी लोअर्ड हर लैम्प एंड सॉ द यंग फेस ऑस्ट्रेली ब्यूटीफुल. ओके, नाउ जो वासव दत्ता थी उसने अपनी लैम्प साइड की और देखा उपागुप्ता का फेस, यंग फेस. ऑस्ट्रेली ब्यूटीफुल मतलब कि आज उपागुप्ता was a monk, right? तो monk बनने के लिए we have to sacrifice everything, right? And we have to step out, okay, from a comfort zone, right? तो Australly beautiful मतलब he had no makeup on his face. He was naturally beautiful, okay. No decoration was on his face, okay. Means he was naturally beautiful. So that's why it's referred here Australly beautiful, okay. So she lowered her lamp and saw the young face, Australly beautiful means lamp उसने साइड की और young face देखा बिना मेकअप, naturally beautiful. किसका? monk का, उपागुप्ता का, ठीक है.
फॉरगिव मी यंग एसेटिक। नाउ यंग एसेटिक यहाँ से रेफर किया जा रहा है मोंक को, उपा गुप्ता को, ठीक है, सेड द वुमेन। तो अब वासव दत्ता ने यंग एसेटिक्स उपा गुप्ता से माफी मांगी कि फॉरगिव मी, ग्रेशियसली कम टू माई हाउस, द डस्टी अर्थ इज नॉट अ फिट बेड फॉर यू। द यंग एसेटिक आंसर्ड, वुमेन गो ऑन योर वे, व्हेन द टाइम इज राइट आई कम टू यू। सडनली द ब्लैक नाइट showed its teeth in a flash of lightning. The storm growled from the corner of the sky, and the woman trembled in fear. A year had not yet passed. It was evening of a day in April in the spring. The branches of the wayside trees were full of blossom. Okay, let's take up this much. Graciously come to my house. Now woman said, Vasavdatta said to the Upagupta कि politely उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आइए, ये आप जो जमीन पे लेटे हैं, डस्टी अर्थ पे लेटे हैं, ये अच्छा नहीं है, आप मेरे घर चलिए, वहां पे जाके सोइए, वहां से आराम से सोइए। बट यंग एसेटिक आंसर्ड, वुमेन गो ऑन योर वे, तुम जहां जा रही हो जाओ, मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगा जब सही समय होगा। ओके, सो एक तो ये लिया गया है, और दूसरा मतलब इसका ये लाइन का लिया गया है कि as Vasavdatta had pride on her beauty, okay, so उसके पास, वासवदत्ता के पास उस टाइम पे सब कुछ था, उसको घमंड था अपनी ब्यूटी पे, उसके पास लोग थे, उसके पास पैसा था, ठीक है, तो उस समय वासवदत्ता को उपा गुप्ता की जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो इसीलिए उपा गुप्ता ने कहा, मॉन्क ने कहा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, आई कम टू यू व्हेन द टाइम इज राइट, आई कम टू यू, ओके, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास व्हेन द टाइम विल बी राइट, ओके। सो उसने कहा कि तुम जाओ जहां जा रही हो, सही टाइम आने पर मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास। एंड द सेकंड इज कि तुम जाओ अपने घमंड की राह पे चलो, मैं तुम्हारे पास तब आऊंगा जब तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, जब तुम्हारा घमंड टूट जाएगा और जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, ठीक है, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। द सेकंड मतलब इसको लिया गया है ऐसे, ठीक है, रियल कॉन्टेक्स्ट इसका ये है। Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. अब अचानक से बिजली चमकने लगती है, और बिजली ऐसे चमकती है जैसे वो हमें दांत दिखा रही हो, ठीक है, सो ऐसे, सो इट्स अ कंपैरिजन मेड हियर, ओके, सो ऐसे बिजली चमक रही है जैसे वो हमें दांत दिखा रही हो। द स्टॉर्म ग्रोल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वुमन ट्रेम्बल्ड इन फियर। नाउ स्टॉर्म मतलब ऐसा माहौल बना बिजली चमकने का और मौसम खराब होने लगा, तो वुमेन डर गई, ठीक है, वुमेन ट्रेम्बल्ड इन फियर। अ ईयर हैड नॉट येट पास्ट, यहां तक ट्रेम्बल्ड इन फियर तक फर्स्ट मीटिंग थी, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग थी किसकी, उपा गुप्ता और वासवदत्ता की, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, अभिसरा मीन्स मीटिंग बिटवीन टू beloved ones or meeting of lovers, okay, meeting between lovers, okay, so this was the first meeting of the Upa Gupta and Vasavdatta, ठीक है। now एक साल भी नहीं गुजरा था, it was evening of a day in April and this is second meeting of वासवदत्ता एंड उपा गुप्ता। और अब ये अप्रैल का महीना था और स्प्रिंग चल रहे थे, ठीक है, पहले क्या बताया गया था, कौन सा मंथ है, अगस्त का, अब क्या बताया जा रहा है सेकंड मीटिंग में कि अप्रैल का मंथ है और स्प्रिंग चल रहा है, ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम, कई बुक में लिखा हुआ है एकिंग ब्रांचेस, ठीक है, मतलब ब्रांचेस इतनी थक चुकी थी क्योंकि उनके साथ उनके ब्रांचेस पे खूब सारे फूल थे, ओके, तो स्प्रिंग सीजन यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, स्प्रिंग सीजन यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम, ओके, हियर स्प्रिंग सीजन इज, हियर द लाइन इज इंडिकेटिंग स्प्रिंग सीजन, ओके। एंड एक और चीज, इस लाइन में सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग रेफर कर रहा है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है, इंडिकेटिंग समथिंग विल बी रॉन्ग आगे, ठीक है। Now, gay notes of a flute came floating in the warm spring air from afar. The citizen had gone to the woods for the festival of flowers. Okay, now gay notes means happy notes. Flute से happy notes निकल रहे थे spring season में, और जो कि बहुत दूर से आ रहे थे आवाज, मतलब फ्लूट से हैप्पी नोट्स बज रहे थे जो कि बहुत दूर से सुनाई दे रहे थे, ठीक है। द सिटीजंस हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, मींस पहले हमें बताया गया था कि सिटीजंस नहीं थे क्योंकि रात का टाइम था और सब सोने के लिए जा चुके थे, और यहाँ पे बताया जा रहा है सिटीजंस नहीं थे क्योंकि वो लोग जंगल गए थे क्या करने, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स बनाने, ठीक है, तो रोड पे कोई नहीं था। From the mid sky gazed the full moon on the shadows of the silent town. This line is indicating romantic line, okay, this line and this line is indicating romantic line, it is a romantic line, this is also a romantic line, okay। now the young ascetic was walking lonely in the street, okay, now the monk was walking lonely in the street while overheard the love sick quails uttered from the mango branches their sleepless plaint। now जाते जाते उन्होंने देखा, कोयल is a bird, okay, is a bird who was singing love songs for loved ones, okay, who was singing love songs for their loved ones, okay, और वो कहाँ पे थी, मैंगो ब्रांचेस पे बैठी थी और वो लव सॉन्ग्स गा रही थी लव्ड वंस के लिए, ठीक है। और ये इंडिकेट कर रहा है, ये पूरा, ओके, फ्रॉम द मिड से लेके रैम्पार्ट तक ये इंडिकेट कर रहा है कि मीटिंग साइन दैट टू लवर्स गोना मीट, ओके, इट इज द साइन दैट टू लवर्स गोना मीट, ओके, ये पूरा ये साइन दिखा रहा है कि अब दो लवर्स मिलेंगे, ठीक है। व्हाट women lay at his feet, sorry, I missed a line, I'm sorry. Upa Gupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart, okay, Upa Gupta passed through the city gates means he was at the end of the Mathura, okay, he was at the end of the Mathura। अब at the end of a Mathura क्यों बताया गया आपको अभी यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। Now what woman lay at his feet in the shadow of the mango grove। now अब एक woman लेटी हुई थी रोड साइड पे मैंगो ग्रूव, मतलब मैंगो के प्रूफ पेड़ के नीचे, मैंगो के ब्रांचेस के नीचे, मैंगो पेड़ के नीचे वासवदत्ता लेटी हुई थी, ओके, वासवदत्ता लेटी हुई थी। now a woman was laying, okay, struck with a black pestilence, her body spotted with spores of small pox, okay। now रोड पे वासवदत्ता लेटी हुई थी, ठीक है, हर बॉडी
was having spores of smallpox. मींस वासव दत्ता को smallpox हो गया था और उसकी बॉडी पे बहुत सारे spores थे. ठीक है. She had been hurriedly driven away from the town. Okay. She had been hurriedly driven, मतलब उसे टाउन से बाहर निकाल दिया था क्योंकि स्मॉल पॉक्स छूने वाली बीमारी है, लेकिन छूने से भी फैलती है, तो उसे टाउन से बाहर निकाल दिया गया था. और ऊपा गुप्ता एट द एंड ऑफ द मथुरा में थे, एट द एंड ऑफ द मथुरा में थे और टाउन से बाहर निकाल दी गई थी वासव दत्ता. तो ये यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे तुम लोग. ठीक है. नाउ टू अवॉइड हर पॉइजनस कॉन्टेजन मींस ताकि दूसरे लोग को ये बीमारी ना हो, इसीलिए उसे टाउन से बाहर निकाल दिया गया था. द एसेटिक सैट बाय हर साइड, टुक हर हेड ऑन हिज नीज. ओके. नाउ नो वन वाज by her side, no one was standing with her, but ascetic young ascetic was standing, okay, by her side. Okay, he sat by her side and took her head on his knees. Okay, उन्होंने वासव दत्ता को अपने गोदी में, अपनी नीज में उनका हेड रखा और उनको पानी पिलाया और उनकी बॉडी पे बाम लगाया, so she can get some relief. Okay, now woman asked, who are you, merciful one? Okay, now the time at last has come to visit you and I am here, Vasav Datta, replied the young ascetic. Now what young ascetic said कि टाइम आ चुका है तुम्हें मिलने का वासव दत्ता, and I am here and this is the right time. Okay, the right time has come and this is the right time. ओके. नाउ आपको ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि मैं तुम्हारे पास तब आऊंगा जब तुम्हारे घमंड चूर चूर हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अब वासव दत्ता के पास कोई नहीं है, उसका घमंड टूट चुका है क्योंकि उसकी बॉडी पे सारे स्पोर्स आ गए हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया और उसकी खूबसूरती खराब हो चुकी है, रूइंड. ओके, उसकी खूबसूरती इज रूइंड. ओके, तो उसका घमंड चूर हो चुका है, उसके पास कोई नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, इसीलिए अब वासव दत्ता को ऊपा गुप्ता की नीड है. ओके, ऊपा गुप्ता की नीड है, इसीलिए द राइट टाइम हैज कम एंड दिस इज द राइट टाइम. ओके, तो this was the story, this was the poem. I hope आपको समझ आई होगी and I tried my best to explain you. And yeah, one more thing, that Vasav Datta is physically beautiful and while Upa Gupta is spiritually beautiful. Okay, key point, you can write it up. And ये भी आप पढ़ सकते हो कि ये story poem क्या demonstrate करती है. It demonstrates the values of love and compassion that may be found in unexpected persons under unusual circumstances. मीन्स ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि आप कैसे अनएक्सपेक्टेड पीपल से मिल जाते हो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से और उनके बीच में आप एक कनेक्शन बना लेते हो, एक कंपैशन बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है अनएक्सपेक्टेडली. ओके, ये एक्सप्रेस करता है. तो बहुत अच्छी पोएम है मेरे हिसाब से. इट्स अ वेरी गुड स्टोरी एंड पीपल लाइक हु आर इनटू पोएट्री और हु आर इनटू लिटरेचर वुड लव दिस पोएट्री. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू then please like my video and share it to your friends. Thank you.